students, I welcome you all to today's class, and today we'll start with a brand new chapter for class 11, that is chapter number 6, thermodynamics. Okay, so it is the lecture number 1, the very first lecture for today's class. We'll be completing it in I guess 6 to 7 lectures probably. Let's see. Chalo. So let us start. What do we understand by the term thermodynamics? I guess physics में पढ़ा होगा. Yes. तो thermodynamics is nothing but the study of heat aspects of matter. Heat aspects कह लो. Okay, because why? Why am I saying the word as heat aspects? Why am I defining it as the heat aspects? Because the word itself, that is thermodynamics. Thermo means what? Something related to temperature. Yes. So thermo means the study of heat aspects of the system. Dynamics again. Okay. Dynamics, why are we saying? Acha, why do we use the word dynamic and why do we use the word static? क्या difference है दोनों words में? Static मतलब होता है जब कोई चीज change नहीं हो रही है time के साथ, and dynamic means one or the other parameter of the system is changing. ठीक है, चेंज होता जा रहा है. सिंपली डायनामिक मतलब बोलते हैं कि कोई चीज मोशन में है. फिजिक्स में बात करते हैं ना कि अगर कोई चीज रेस्ट पे है मतलब इट इज स्टैटिक, एंड अगर मोशन में है मतलब व्हाट इज दैट कॉल्ड एज इट्स डायनामिक स्टेट. ओके, तो दिस इज व्हाट इज सेड कि थर्मोडायनामिक्स क्या है. अब थर्मोडायनामिक्स में हम एग्जैक्टली देखते क्या है. वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन वर्क, हीट, energy, temperature, okay, and various other parameters like entropy, enthalpy, many things. Okay, so it is basically the study of relations between heat, work, temperature and energy. Yes, and since they keep on constantly changing, तो dynamics बोल देते हैं. Clear है? चलो. Okay, so let us study. Wait a minute. Okay, let us start the chapter and study. Okay, laws of thermodynamics apply only when a system is in equilibrium state or moves from one equilibrium state to another equilibrium state. So this is the very important condition कि thermodynamics तभी या फिर कह लो laws of thermodynamics तभी applicable होंगे जब आपका system equilibrium में है. Okay, stable है. Clear? इक्विलिब्रियम हम आगे भी 7 चैप्टर है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे उस चीज को. अभी के लिए इतना समझ लो कि जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा सिर्फ तभी और तभी लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उस पर एप्लीकेबल होंगे. ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है. मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर, टेम्परेचर डू नॉट चेंज विद टाइम फॉर अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम स्टेट. ओके, चलो ठीक है. Coming to various terms. अच्छा देखो, फर्स्ट लेक्चर बहुत बेसिक होगा, बहुत इजी होगा, बहुत मजा आने वाला है. कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ वही है जो हम पहले से जानते हैं. ठीक है, तो चलो देखते हैं. थर्मोडायनामिक टर्म्स पढ़ने हैं हमें इसमें. लेट अस सी. फर्स्ट इज सिस्टम एंड सराउंडिंग्स. क्या समझते हो? सिस्टम क्या है, सराउंडिंग्स क्या है? टेल मी. कंप्यूटर वाला सिस्टम. So what do we understand by system, students? System का मतलब होता है any object or any matter or any particular point of reference under observation. ठीक है, अगर मान लो मैं ये पेन को ऑब्जर्व कर रही हूँ, इसको स्टडी कर रही हूँ, इसके सारे पैरामीटर्स स्टडी कर रही हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, तो ये क्या हो गया मेरे लिए? एक सिस्टम हो गया. रेस्ट ऑल द थिंग्स आर द सराउंडिंग्स. ओके, तो हम सम अप करके कह सकते हैं कि आवर होल ऑफ द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ सिस्टम प्लस दी सराउंडिंग्स. यस, वेरी इजी. ओके, तो सिस्टम क्या है? कोई भी चीज, बहुत आसान भाषा में बोले तो कोई भी चीज जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, एनी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी या एनी पर्टिकुलर मैटर, or if I am studying this board, then this board is my system. Rest all the things are the surroundings. Even this pen, this will also be the surrounding if I am studying the board. मतलब अगर मैं बोर्ड की स्टडी कर रही हूँ, इसके पैरामीटर स्टडी कर रही हूँ, क्या डायमेंशंस हैं, किस कलर का है, क्या थिकनेस है. यस,
तो ये क्या हो जाएगा, मेरा सिस्टम हो जाएगा, फिर ये सिस्टम नहीं बचेगा. What will this come into? It will come under surroundings. Clear? इतना clear है? चलो. तो a system in thermodynamics refers to the part of the universe in which observations are made and remaining universe constitute the surroundings. Okay? Yes? तो universe क्या हो गया? It is equal to system plus surroundings. Clear? चलो देखो इतना. Okay. So the system may be defined by physical boundaries. अच्छा, एक चीज देख लो, सिस्टम क्या क्या हो सकता है. मान लो मैं केमिस्ट्री लैब में कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रही हूँ एंड दिस इज द टेस्ट ट्यूब एंड इसमें कुछ प्रेसिपिटेशन हुआ है तो मैं इसको ऑब्जर्व कर रही हूँ. यस, तो दिस सिर्फ इतना सेक्शन दैट इज अंडर ऑब्जर्वेशन विल बी माई सिस्टम. रेस्ट ऑल ऑफ द थिंग्स दैट आर रिमेनिंग एक्सेप्ट दिस सिस्टम will be the surroundings. Clear? तो चलो, a system may be defined by physical boundaries like beaker or the test tube. मतलब अगर हम सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं तो फिजिकल बाउंड्रीज से डिफाइन कर सकते हैं कि ये बीकर है, इसमें ये सोल्यूशन है, इसको हम स्टडी कर रहे हैं. तो सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में कुछ बाउंड्री होगी ना. कैसे डिफाइन करेंगे, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? बाय द मीन्स ऑफ अ बाउंड्री. तो सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में बेटा बाउंड्री होती है. व्हाट कैन दैट बाउंड्री बी? This, like it is said, beaker or test tube, or the system may be simply defined by the set of Cartesian coordinates. X, Y, Z axis बना लो. यहाँ पर सिस्टम को, यहाँ जो पॉइंट है हमारा, पॉइंट जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, पॉइंट अंडर ऑब्जर्वेशन, उसको हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में क्या कर दिया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में उसको डिफाइन कर दिया. ठीक है, तो ये भी हमारा एक सिस्टम हो सकता है. मतलब इट कैन बी एज बिग एज अ बीकर एंड एज स्मॉल एज अ पॉइंट. जरूरी नहीं है कि सिस्टम है तो उसका कुछ एप्रिशिएबल मैग्नीट्यूड, मतलब डायमेंशंस के टर्म्स में कि इतना बड़ा है ही नहीं, जरा सा है, इसको क्यों सिस्टम बोले, फिर सराउंडिंग्स तो इतनी ज्यादा होगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, चलो. Specifying a particular volume in space. Okay, it is necessary to think of a system as separated from the surroundings. कैसे? Separated by means of a boundary. अब ये boundary real हो सकती है या फिर imaginary हो सकती है. Okay, the wall that separates the system from the surroundings is called boundary. मान लो अगर ये पूरा हमारा system under observation है, rest is surroundings, तो system को surroundings से separate कैसे किया है? By means of this boundary, जो कि beaker है. Yes, beaker की lining. Yes. Clear? इतना clear है? चलो, I guess इतना clear है students. Let's move on now. Coming to the types of system. 3 टाइप के systems होते हैं, open system, closed system and what? Isolated system. Okay? चलो, let us see किन terms में हमें define करना है type of system. Let us check. देखो, exchange of energy and matter की बात होगी. Energy में आ जाएगी exchange of heat and matter में आ जाएगा कुछ भी. अभी एग्जाम्पल से समझते हैं हीट एंड मैटर. अगर एक्सचेंज हो रहा है या नहीं एक्सचेंज हो रहा है, इनके बेसिस पर हम टाइप्स ऑफ सिस्टम डिफाइन करते हैं. देखो, ओपन सिस्टम में क्या होगा? ओपन सिस्टम क्या होता है? मान लो ये बीकर है. ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल, दिस इज द बीकर, इट इज गेटिंग सम हीट. यस, एंड इसमें कुछ सोल्यूशन है जो बॉईल हो रहा है. तो हीट का भी एक्सचेंज है, मतलब बाहर से हीट प्रोवाइड हो रही है. ये मेरा सिस्टम है, इसमें बाहर से मैं हीट प्रोवाइड कर रही हूँ स्टूडेंट्स. यस, आई एम प्रोवाइडिंग द हीट. एंड ये जो मैटर है जो यहाँ पर बॉईल हो रहा है, ये इवेपोरेट भी तो हो रहा है. मतलब अगर मान लो कि इसकी फिजिकल बाउंड्री सिर्फ इतनी थी, तो ये इसकी फिजिकल बाउंड्री ये हो गई, सिस्टम की सिर्फ इतनी बाउंड्रीज हैं, इसके अलावा तो पूरी सराउंडिंग्स हैं. तो ये सराउंडिंग्स से सिस्टम में हीट जा रही है एंड सिस्टम से सराउंडिंग्स में मैटर जा रहा है. यस, मैटर क्या है? वाटर बॉईल होकर के वेपर में कन्वर्ट हो रहा है. तो वेपर इज अ फॉर्म ऑफ मैटर ना. 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस. यस, तो वेपर इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ मैटर. तो एक्सचेंज हो रहा है सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में, दोनों मैटर और हीट का. isn't it? तो दिस विल बी एन ओपन सिस्टम. क्या होता है एन ओपन सिस्टम? देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, दैट इज विच एनर्जी? हीट एनर्जी एंड मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स. क्लियर है? अगर बहुत जनरली बोले तो दिस इज द डेफिनेशन फॉर ओपन सिस्टम. क्लोज सिस्टम की बात करते हैं स्टूडेंट्स. क्लोज सिस्टम में क्या होगा? मान लो सेम बीकर है, लेकिन हीट एक्सटर्नली हीट तो प्रोवाइड हो रही है, लेकिन मैंने इसको यहाँ से बंद कर दिया. ओके, यहाँ से मैंने इसको क्लोज कर दिया. अब क्लोज कर दिया तो क्या यहाँ पर जो वेपर फॉर्म हो रहा है वो एस्केप कर पाएगा सराउंडिंग्स में? नहीं.
नहीं एस्केप कर पाएगा। तो हाउ आर वी डिफाइनिंग द क्लोज सिस्टम? दैट देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर बट द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स। क्लियर है इतना? ओके, सो दिस विल बी द क्लोज सिस्टम। इसमें हीट का एक्सचेंज तो होगा स्टूडेंट्स, लेकिन मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा। यहाँ पर हीट का भी एक्सचेंज होगा, मैटर का भी एक्सचेंज होगा। क्लियर है? ओके, कमिंग टू द आइसोलेटेड सिस्टम। क्या लगता है आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा? How can we define an isolated system? Tell me. See, if we are talking about an isolated system, इसमें क्या होगा? ना ही बेटा मैटर का एक्सचेंज होगा, ना ही एनर्जी का एक्सचेंज होगा। आप बोलोगे ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, जब हम छोटी क्लासेस में थे तो हमने ये वाला एग्जाम्पल बहुत बार पढ़ा था, दैट सोडियम मेटल रिएक्ट्स विगरसली विद द एसिड। तो मान लो ये पूरी इंसुलेटेड वॉल्स हैं, इंसुलेटेड वॉल्स है, यस, इंसुलेटेड वॉल्स है स्टूडेंट्स। इंसुलेशन का मतलब क्या होता है? इंसुलेटेड होने का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल भी एक्सचेंज, इट इज टाइटली पैक्ड। ओके, इसमें कोई भी ना ही मैटर बाहर जा सकता है, ना ही अंदर आ सकता है, ना ही हीट बाहर जा सकती है, ना ही अंदर आ सकती है। क्लियर है इतना? ओके, तो इफ आई एम टॉकिंग कि ये एक इंसुलेटेड सिस्टम है ना, इसकी बाउंड्रीज इंसुलेटेड है, ना हीट एस्केप कर सकती है, ना अंदर आ सकती है, ना ही मैटर का एक्सचेंज हो सकता है। एंड HCl एसिड है इसके अंदर। व्हाट इज द एसिड? HCl एसिड। एंड आई हैव टेकन अ सोडियम मेटल। अब सोडियम मेटल का HCl एसिड के साथ विगरस रिएक्शन होता है, इजंट इट? तो यहाँ पर जैसे सोडियम मेटल डाला एंड HCl acid, what will happen? Vigorous reaction होगा, exothermic reaction, because we know that sodium reacts very violently with the acid. Yes, तो vigorous reaction होगा। अब vigorous reaction होगा कैसा? exothermic, तो heat evolve हुई, yes, heat evolve हुई, and matter भी, मतलब कुछ नया हमें मिला, reactants हैं ये तो Na plus HCl, क्या मिलेगा? NaCl, isn't it? Yes, तो कुछ मैटर भी मिल रहा है, लेकिन क्या हीट, ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के आउटकम से जो हीट जनरेट हुई है बेटा, क्या इट इज एबल टू मूव आउट? नो, राइट? तो वी कैन से दैट ना ही इसमें से हीट बाहर जा पा रही है जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का रिजल्ट है, ना ही हीट अंदर आ पा रही है, इजंट इट? एंड ना ही जो मैटर बना है वो बाहर या अंदर हो पा रहा है। यस, तो सच टाइप ऑफ सिस्टम्स आर दी आइसोलेटेड सिस्टम्स। Say in an isolated system there is no exchange of energy or matter between the system and the surroundings. Clear? Is this much clear to all of you? Okay, let us move on now. See, the state of the system. What do we understand by the state of the system? See, we specify the state of the system by स्टेट वेरिएबल्स या थर्मोडाइनामिक वेरिएबल्स। इनमें क्या क्या आ जाएगा? जो क्वांटिटीज हमारी मेजरेबल क्वांटिटीज मेनली जो हमने पढ़ी थी, किसमें पढ़ी थी? स्टेट्स ऑफ मैटर में मेजरेबल क्वांटिटीज पढ़ी थी ना। व्हाट वर दे? अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, यस, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। So all of these are the measurable properties of a system and these come under the state variables या thermodynamic variables. इन्हीं को हम कहते हैं state variables और thermodynamic variables. The state of thermodynamic variables is described by its measurable और macroscopic और bulk properties. देखो, अब इन्हीं के सिनोनिम्स हैं, हमें पता है मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं ये सारी, बहुत इजी है याद करना स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें पता है स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने बहुत अच्छे से याद किया था कि मेजरेबल प्रॉपर्टीज सिस्टम की क्या क्या है ना। वी सॉ द मेजरेबल प्रॉपर्टीज, यस। तो अब उन्हीं को क्या बोल दे रहे हैं? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज या फिर बल्क प्रॉपर्टीज, isn't it? Yes, तो कंफ्यूजन में नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं रहना है। स्टेट वेरिएबल्स या थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स वही हैं बेटा जो हमने पढ़े थे स्टेट्स ऑफ मैटर में, दैट इज द मेजरेबल प्रॉपर्टीज। क्या है? अमाउंट पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर P, वॉल्यूम V, टेम्परेचर T, एंड यहाँ पर एंट्रोपी एक नया इंक्लूड हो गया है, ये हम आगे बहुत डिटेल में देखेंगे। ओके, क्लियर? चलो, वेरिएबल्स P, V, T आर ऑल्सो कॉल्ड एज द स्टेट फंक्शंस। इन्हीं को क्या बोलते हैं? स्टेट फंक्शंस। स्टेट वेरिएबल्स का ही दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट? स्टेट फंक्शंस, बिकॉज देयर वैल्यूज डिपेंड ओनली ऑन द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस एंड नॉट ऑन हाउ इट इज रीच्ड। चलो, अब यहां से दो चीजें निकल कर आती हैं, वन इज द स्टेट फंक्शन एंड वन इज द पाथ फंक्शन। इसको समझ लेते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। क्या चीजें आई बेटा? स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन, and second is path function.
ओके चलो, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन क्या होता है? जो क्वांटिटीज सिर्फ और सिर्फ स्टेट ऑफ द सब्सटेंस पर डिपेंड करती हैं, दैट इज द इनिशियल स्टेट एंड द फाइनल स्टेट, दैट कम अंडर स्टेट फंक्शन। एंड जो क्वांटिटीज डिपेंड करती हैं ऑन द पाथ फॉलोड, कि अगर ये रिएक्शन हुआ है, यहाँ प्रोडक्ट हमें मिला है, तो पाथ क्या फॉलो हुआ है। ओके तो दीज आर डिफाइंड एज अंडर पाथ फंक्शन। चलो, स्टेट फंक्शन में फर्स्ट पॉइंट क्या है? डिपेंड ओनली अपॉन initial and final state, okay? And secondly, path function क्या है? Depend on the path followed, yes? तो state variables depend करते हैं सिर्फ initial and final state पर, and path function इसमें क्या क्या देखा है state variables हमने? pressure, वॉल्यूम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंट्रोपी। यस, इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे बेटा? वर्क हो जाएगा, बिकॉज इट डजंट डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, इट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड। ठीक है, कि क्या पाथ फॉलो हुआ है, सिस्टम ने क्या पाथ फॉलो किया है, वेदर साइक्लिक है, नॉन साइक्लिक है, क्या है, किस तरह का पाथ फॉलो कर रहा है सिस्टम, उस पर डिपेंड करते हैं पाथ फंक्शन वाले पैरामीटर्स, जैसे वर्क हो गया, हीट हो गया एंड हीट कैपेसिटी। अच्छा, एक ट्रिक बता देती हूँ, ये हीट एंड हीट कैपेसिटी जो टर्म्स है ना बेटा, बिल्कुल डरना मत अगर मैं कोई नया टर्म इंट्रोड्यूस कर रही हूँ तो, बिकॉज हम ये सारे टर्म्स डीप में देखने वाले हैं। ओके, वी चेक देम ऑल इन डीप। ठीक है, चलो तो अच्छा, एक ट्रिक है कि वर्क, हीट एंड हीट कैपेसिटी के अलावा जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं, जितने भी पैरामीटर्स होते हैं, दे कम अंडर द स्टेट फंक्शन। क्लियर है इतना? चलो आगे देखते हैं, लेट अस चेक आउट नाउ। आई होप इतना क्लियर है सबको, स्टेट एंड पाथ फंक्शन के बीच में डिफरेंस। ठीक है, चलो लेट अस मूव ऑन। ओके, कमिंग ऑन द इंटरनल एनर्जी एज अ स्टेट फंक्शन। अच्छा, मैंने क्या बोला था मैंने कि पाथ फंक्शन में सिर्फ कौन कौन सी चीजें आएंगी? वर्क, हीट एंड हीट कैपेसिटी। यस, सिर्फ इतनी चीजें, उसके अलावा जितने भी टर्म्स है दैट विल कम अंडर द स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल्स। तो अब इंटरनल एनर्जी एक नया टर्म है बेटा। यस, सिंस ये पाथ फंक्शन में तो आ नहीं सकता, तो किस में आएगा? स्टेट फंक्शन में। इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। ठीक है, अब देखो टोटल एनर्जी होता क्या है? इंटरनल एनर्जी, इट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यस, सी, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम मे बी केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर मान लो ये सिस्टम है मेरा, तो इसकी क्या केमिकल एनर्जी है, क्या मैकेनिकल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ऑल ऑफ द सम ऑफ दीज एनर्जीज कंस्टिट्यूट द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम may be chemical, electrical, mechanical or any other type of energy, and some of all these energies is the energy of the system, also called as the internal energy. Denotion कैसे है? U से। How do we denote it? With capital U. Clear? चलो, ये चेंज हो सकती है when heat passes into or out of the system, work is done on or by the system and matter enters or leave the system. कब ये चेंज हो सकती है? Because see, how do we often denote? आगे हम काफी यूज करेंगे इस डेल साइन का। डेल मतलब होता है चेंज इन अ क्वांटिटी। ठीक है, डेल क्या डिफाइन करता है? चेंज इन अ क्वांटिटी। ओके, तो स्टूडेंट्स, जो ये इंटरनल एनर्जी है, ये चेंज कब होगी? ये हमने लिस्ट कर दिए हैं डिटेल्स कि हीट, वर्क या फिर मैटर के कम ज्यादा होने पर इंटरनल एनर्जी पर भी फर्क पड़ेगा। क्लियर? ओके, लेट अस मूव ऑन नाउ। कमिंग टू वर्क। अच्छा, एक चीज, इंटरनल एनर्जी की बात हो रही है ना, तो ये चीज यही देख लो। इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, इट इज U इज इक्वल टू Q प्लस W। नाउ व्हाट इज Q एंड व्हाट इज W? U तो हमें पता है इंटरनल एनर्जी है। Q क्या है बेटा? Q इज द हीट एंड W इज द वर्क डन। क्लियर है?
वर्क डन। इसको हम बहुत ही वाइडली यूज करने वाले हैं अभी, एंड दिस इज व्हाट इज आवर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इसको, अभी के लिए इतना देखो, बिकॉज आगे वर्क एंड हीट के टर्म्स आने वाले हैं, तो इसीलिए ये बताना जरूरी था। चलो लेट अस मूव ऑन। व्हाट इज वर्क? व्हाट इज वर्क डन ऑन द सिस्टम? टेल मी, व्हाट इज वर्क डन ऑन द सिस्टम स्टूडेंट्स? यस, हमने अक्सर पढ़ा है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट, यस, F इनटू डी, इजंट इट? यस, यही पढ़ा है, दिस इज व्हाट इज वर्क। चलो साइन कन्वेंशन यहां पर देखना है हमें मेनली कि क्या साइन होगा। ये जो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखा था, U इज इक्वल टू Q प्लस W, इसमें साइन कन्वेंशंस क्या होंगे वो देखना है हमें। अब देखो, एक चीज याद रखना कि वर्क डन जो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव कब होता है। दो कंडीशंस हैं, वर्क डन इज पॉजिटिव एंड वर्क डन इज नेगेटिव व्हेन, ये देखते हैं। चलो, पॉजिटिव साइन एक्सप्रेसेस दैट वर्क इज पॉजिटिव व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। अच्छा, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में ये दो कॉन्ट्रास्टिंग चीजें हैं। थर्मोडायनामिक्स में आपने पढ़ा होगा, उसमें वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन पॉजिटिव इन फिजिक्स, बट इन केमिस्ट्री वी टेक द वर्क डन ऑन द सिस्टम एज पॉजिटिव, ओके। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम विल बी पॉजिटिव एंड वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर हम सिस्टम से मेहनत करवा रहे हैं तो दैट विल बी नेगेटिव। क्लियर है? ऐसे करके याद कर लो, अगर हम सिस्टम से मेहनत करवा रहे हैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम, तो उसको कैसे लेंगे? नेगेटिव में लेंगे, ठीक है। चलो, तो पॉजिटिव साइन एक्सप्रेसेस दैट वर्क इज पॉजिटिव व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम एंड द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। व्हाई? क्योंकि अगर बेटा ये पॉजिटिव है तो ये भी तो पॉजिटिव ही रहेगी ओवरऑल, इजंट इट? अच्छा, नेगेटिव साइन अगर है, यहाँ पर वर्क डन का साइन जो है स्टूडेंट्स नेगेटिव है, तो Q माइनस W हो जाएगा एंड कुछ नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो सिंस U भी फिर नेगेटिव हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट इज सेड, नेगेटिव साइन एक्सप्रेसेस दैट वर्क इज नेगेटिव व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम एंड द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। ये नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है बेटा? अ डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। क्लियर है? चलो लेट अस मूव ऑन। तो ये साइन कन्वेंशन बहुत, आई वुड से इट इज वेरी वेरी हाईली इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हीट। चलो, हीट क्या है? व्हाट इज हीट? हाउ डू वी डिफाइन हीट? एज द एक्सचेंज ऑफ व्हाट? Exchange of energy which is a result of temperature difference is called as heat. Denote कैसे करते हैं heat को? Q से, okay, small q से। Convention इसमें भी देखना है, when heat is transferred from the surroundings to the system। अच्छा चलो छोड़ो ये सब theoretical चीजें, सिंपल सी चीज समझो, सिंपल सी चीज समझो। देखो ये दो सिस्टम ले रही हूं मैं, ओके, these are my system, ओके, एंड ये सारी सराउंडिंग्स है। अगर सराउंडिंग से सिस्टम में हीट आ रही है, मतलब कोई चीज ऐड हो रही है ना, तो प्लस का साइन प्लस क्यू। हीट अगर बाहर से सिस्टम में आ रही है तो इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव, लेकिन अगर हमारे सिस्टम से कुछ लॉस हो रहा है, ठीक है, हीट का लॉस हो रहा है, तो लॉस को किससे दिखाते हैं? नेगेटिव से। सिस्टम से सराउंडिंग्स में हीट जा रही है मतलब सिस्टम में लॉस हो रहा है, तो दिस विल बी शोन बाय नेगेटिव। क्लियर? तो तब हम हीट को कैसा लेते हैं? नेगेटिव। I hope it is clear to all of you. Let us move on now. This exchange of energy which is result of temperature difference is heat, ठीक है। Q is positive when heat is transferred from surroundings to the system, as I told you, and negative कब होगी? जब system से surroundings में जाएगी, when transferred from systems to the surroundings, okay? अच्छा, एक नोट है कि adiabatic process क्या होता है? जिसमें heat exchange zero है, okay? बोला है ना कि exchange of energy is heat। अब जब ये एक्सचेंज ही नहीं होगा, कुछ एक सिस्टम है जिसमें Q इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, तो व्हाट विल दैट प्रोसेस बी कॉल्ड एज, और सिस्टम कॉल्ड एज द एडियाबैटिक प्रोसेस और द एडियाबैटिक सिस्टम, ठीक है, इज अ प्रोसेस इन विच देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम्स एंड द सराउंडिंग्स। क्लियर? क्लियर है स्टूडेंट्स? टेल मी यस। ओके, आई होप इट इज क्लियर। लेट अस मूव ऑन नाउ। सी, एक चीज पढ़ी है, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। चलो छोड़ो इसको, डेल्टा वेल्टा छोड़ो, सिंपल सा समझो कि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जब मैं बात करूंगी तो क्या बोला है कि हीट एक्सचेंज जीरो है। कंडीशन क्या है एडियाबैटिक प्रोसेस की? दैट हीट एक्सचेंज इज जीरो। अब हीट एक्सचेंज जीरो हो गया, ये फैक्टर, ये क्वांटिटी जीरो हो गई, तो क्या हो जाएगा बेटा? इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू द वर्क डन,
यही आ जाएगा हमारा रिलेशन, इजंट इट? तो ये एक छोटी सी बात ध्यान में रखना। ओके चलो लेट अस मूव ऑन। कमिंग टू द वेरी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके चलो क्या है, फॉर अ गिवन चेंज इन स्टेट Q and W can vary depending upon how the change is carried out. Okay, this is the equation for the very first law of thermodynamics, that is del U is equal to Q plus W. Internal energy is the sum of heat and work done. Okay chalo, however delta U is equal to Q plus W will depend only on the initial and final state. Why? Because internal energy is a state function. It is a state variable. Path functions कौन कौन से थे? सिर्फ 3, work, heat and heat capacity. लेकिन यहाँ पर internal energy students क्या है? What is internal energy? It is a state function and therefore it will depend only on the initial and final state. यही बताया था। चलो, if there is no transfer of energy as heat or as work in the isolated system, अब isolated system की बात हो रही है कि उसमें क्या होगा, ना ही heat transfer होगी ना ही work होगा, that is work done will be 0 and Q will be 0, तो internal energy क्या हो जाएगी, automatically 0. U is equal to Q plus W. आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है स्टूडेंट्स, हीट ट्रांसफर तो होता ही नहीं है एंड वर्क डन भी कुछ नहीं होता, तो ये दोनों फैक्टर जीरो हो गए तो U क्या हो जाएगा, जीरो. दैट इज व्हाट इज एक्सप्लेन्ड इन द सेकंड पॉइंट. ठीक है, so this equation delta U is equal to Q plus W is a mathematical statement of the very first law of thermodynamics that states that the energy of an isolated system is constant. Okay, what does it state? That energy of an isolated system is constant. Okay, क्यों है constant? क्योंकि ना ही उसमें कुछ अंदर से बाहर आ रहा है ना ही बाहर से अंदर जा रहा है, तो जाहिर सी बात है जो इंटरनल एनर्जी है, ये मेरा आइसोलेटेड सिस्टम है, इंसुलेटेड वॉल्स वाला एक्सप्लेन किया था. ठीक है, तो क्या है इसकी एनर्जी जो होगी इस पर्टिकुलर सिस्टम की, इट विल बी स्टूडेंट्स कांस्टेंट. ना बाहर से कुछ आ रहा है अंदर एंड ना अंदर से कुछ आ रहा है बाहर. ओके, क्लियर है? क्लियर है इतना? ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. अब पढ़ते हैं वर्क अच्छे से डेप्थ में. ओके, ठीक है. Let us consider a cylinder which contains 1 mole of an ideal gas fitted with a frictionless piston. This is the cylinder. Ideal gas है, 1 mole ideal gas, सारी ideal conditions. It is fitted with a piston. This is what is a piston? Yes, this is what is a piston, students. Okay, चलो इसमें 1 mole of ideal gas है. चलो आगे देखते हैं. Total volume of the gas is VI जो कि initial है and the pressure inside is P. प्रेशर कितना है P एंड वॉल्यूम कितनी है V इनिशियली. ठीक है, द गैस वॉल्यूम ऑफ द गैस इज VI. I क्यों यूज करें इनिशियली. अब P एक्सटर्नल अगर अप्लाई करते हैं, क्या बोला है, इफ P एक्सटर्नल इज ग्रेटर दैन P, मतलब P तो है इंटरनल प्रेशर, और अगर P एक्सटर्नल, मान लो यहाँ पर मैंने वेट्स रख दिए कुछ, है ना, तो मैं क्या प्रोवाइड कर रही हूँ, एक प्रेशर प्रोवाइड कर रही हूँ. अब वेट्स रख दिए तो जाहिर सी बात है ये पिस्टन कंप्रेस होगा, गैस कंप्रेस होगी, पिस्टन नीचे जाएगा. तो अगर ये कब होगा, जब P एक्सटर्नल जो है, ये जो मैं अप्लाई कर रही हूँ एक्सटर्नल प्रेशर, P एक्सटर्नल इज द एब्रिविएशन फॉर एक्सटर्नल प्रेशर. अगर ये P एक्सटर्नल इज ग्रेटर दैन P स्टूडेंट्स, इफ इट इज ग्रेटर दैन P, देन व्हाट विल हैपन, ये कंप्रेस होने लगेगी गैस एंड इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा. यस, इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा स्टूडेंट्स, इजंट इट, पिस्टन का कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा. चलो नाउ मान लो कि पिस्टन डिस्प्लेस होकर यहाँ आ गया, पिस्टन डिस्प्लेस होकर यहाँ आ गया, तो अब वॉल्यूम क्या हो गई, V फाइनल. अब वॉल्यूम क्या हो गई, V फाइनल. ओके, क्लियर है? ड्यूरिंग दिस कंप्रेशन सपोज पिस्टन मूव्स अ डिस्टेंस A एंड इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पिस्टन इज A. ओके, चलो मान लो अब ये जो कंप्रेशन हो रहा है, पिस्टन पहले यहाँ था फिर यहाँ आ गया, इजंट इट, तो अब फाइनल वॉल्यूम क्या हो गई, VF. ये इतनी वॉल्यूम, पहले तो V इनिशियल इतनी थी, अब V फाइनल इतनी हो गई, इसको इरेज कर देना, कंसिडर मत करना, V फाइनल इतनी हो गई. तो क्या बोला है, इस कंप्रेशन के दौरान सपोज ये जो पिस्टन है इसने मूव कितना किया है बेटा, L डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक L डिस्टेंस किया है, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया है ये कितना है, A है. ओके, तो वॉल्यूम चेंज क्या हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज क्या हो जाएगा, एरिया इनटू लेंथ. यस,
वॉल्यूम चेंज क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ, तो लेंथ इंटू एरिया विल बी द चेंज इन वॉल्यूम विच इज चेंज इन वॉल्यूम। अच्छा, ये जो डेल्टा होता है इसको कैसे डिफाइन करते हो, फाइनल माइनस इनिशियल, इजंट इट? यस, फाइनल माइनस इनिशियल से ही डिफाइन करते हो ना, तो दिस इज व्हाट इज डन कि चेंज इन वॉल्यूम, जो ओवरऑल चेंज इन वॉल्यूम हम कैलकुलेट करेंगे इसके कंप्रेशन की वजह से जो चेंज हुआ है, what will it be, delta V is equal to Vf minus Vi, that is V final minus initial. Yes, चलो अब सिंस हमें पता है प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, इतना हमें पता है ना। ओके, लेट अस चेक हियर, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, एंड अगर हम यहाँ से फोर्स के डायमेंशंस निकालें तो क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया, इजंट इट? यस, प्रेशर इंटू एरिया हो जाएगा या नहीं? ओके, क्लियर है इतना? अब देखो वर्क डन कितना होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। यस, तो फोर्स की वैल्यू रख दूं मैं यहाँ पर, फोर्स कितना हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्टेंस। नाउ ये तो सिर्फ मैंने इसकी रखी, नाउ डी डिस्टेंस कितना है, एल, तो ए इंटू एल वॉल्यूम नहीं होता क्या स्टूडेंट्स, बताओ मुझे, होता है ना? तो वर्क डन विल बी प्रेशर इंटू द चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम कौन सी होगी, चेंज इन वॉल्यूम, एंड प्रेशर कौन सा होगा, पी एक्सटर्नल, जिसकी वजह से वर्क डन हुआ है। पी एक्सटर्नल क्यों लेते हैं यहाँ पर, आप बोल सकते हो मैम पी आई क्यों नहीं लिया, पी एक्सटर्नल ही क्यों लिया, क्योंकि बेटा वर्क डन जो हुआ है, द चेंज इन द, जो डिस्प्लेसमेंट हुई है, यहाँ पिस्टन था यहाँ आया है, क्या वो आ जाता इंटरनल प्रेशर की वजह से, पीआई की वजह से आ जाता? नहीं, जब तक हम उस पर वेट्स नहीं रखते, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई नहीं करते, तब तक वर्क डन होता ही नहीं, इसीलिए हमने पी एक्सटर्नल लिया, इसीलिए पी एक्सटर्नल लेते हैं एक्चुअली। ओके, बिकॉज द वर्क डन, दिस वर्क इज occurring, this work is happening because of this pressure that is P external that we have applied externally. Clear? चलो, okay, I hope इतना clear है सबको। तो ये इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ, वर्क डन इज इक्वल टू P del V, इतना क्लियर है सबको? चलो आगे देखते हैं, व्हाट इज दिस P एक्सटर्नल, ठीक है? चलो लेट अस सी नाउ, सिंस प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, देयरफॉर फोर्स ऑन द पिस्टन इज P एक्सटर्नल डॉट A। अच्छा, उन्होंने क्या कर दिया था कि P फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना, तो उन्होंने फोर्स क्या ले लिया, प्रेशर इनटू एरिया तो होता ही है, एंड ये प्रेशर कितना, P एक्सटर्नल। ओके, सिर्फ इतनी सी बात थी। ओके, लेट अस चेक मोर, एंड एज आई टोल्ड यू वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये आ गया। अब प्रेशर एक्सटर्नल, ध्यान से देखना, यहाँ पर इनिशियली जो V आई था वो ज्यादा था ना, एंड V फाइनल छोटा हो गया, तो V जब इनिशियल कंडीशन ज्यादा होती है ग्रेटर दैन फाइनल, लेकिन डेल्टा V में हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, V फाइनल माइनस V इनिशियल, तो क्या ये वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी? जब छोटे में से बड़ा माइनस करेंगे, फाइनल छोटा है ना, छोटा, देखो फाइनल जो वॉल्यूम थी वो छोटी है ना, V फाइनल, दिस इज V फाइनल एंड होल ऑफ दिस इज V इनिशियल, होल ऑफ दिस इज V इनिशियल एंड V फाइनल छोटा है, कंप्रेशन के बाद V फाइनल वॉल्यूम मिली है जो, यस। तो अब बड़े में छोटे में से बड़ा माइनस करेंगे तो वैल्यू तो नेगेटिव आएगी ना, तो दिस इज व्हाट इज द साइन हियर, P एक्सटर्नल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा V, क्योंकि जब डेल्टा V की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे छोटे में से बड़ा माइनस करके तो हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, तो दैट इज वाई नेगेटिव साइन है। अब इसको हम फर्दर लिखते हैं, इस नेगेटिव साइन को यहाँ कर दिया, तो क्या हो गया, माइनस P एक्सटर्नल डॉट डेल्टा V which is equal to minus P external, डेल्टा V की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट्स, V final minus V initial। क्लियर है इतना? ओके, नाउ द नेगेटिव साइन ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन कन्वेंशनल साइन फॉर वर्क डन। ओके, जो कि हमें पॉजिटिव चाहिए, वर्क डन पॉजिटिव चाहिए ना भाई, सिस्टम पर काम कर रहे हैं, सिस्टम तो काम नहीं कर रहा है, अंदर प्रेशर ज्यादा होता तब पिस्टन ऊपर मूव करता तो सिस्टम काम करता हम बोलते, लेकिन सिंस सिस्टम के ऊपर काम हुआ है तो वर्क डन तो पॉजिटिव चाहिए बाय कन्वेंशन। यस, सो दिस इंडिकेट्स दैट इन केस ऑफ कंप्रेशन वर्क डन इज ऑन द सिस्टम, कंप्रेस किया P एक्सटर्नल प्रोवाइड करके, तो ड्यूरिंग कंप्रेशन वर्क डन इज positive, here V final minus V initial will be negative and negative multiplied by negative will be positive। okay, clear है इतना?
तो ये जो नेगेटिव साइन हमें मिला है ना, ये वैल्यू हमारी नेगेटिव आएगी एंड नेगेटिव विल गिव अस द पॉजिटिव वैल्यू फॉर वर्क डन, हेंस द साइन ऑब्टेन फॉर द वर्क डन विल बी पॉजिटिव। अब यहाँ पर देख लो वर्क डन को कैसे लिखा है, वर्क डन इज इक्वल टू P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V था ना, डिफरेंशिएट कर दिया है, दिस इज नथिंग बट द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। यहाँ पर देखो V फाइनल एंड V इनिशियल, क्लियर, दिस इज व्हाट, साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव, दिस इज व्हाट इज द और यू कैन से इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, कुछ नहीं किया, इंटीग्रेट कर दिया है इस इक्वेशन को, ठीक है। चलो आई होप क्लियर है इतना, ओके आगे देखते हैं। A process or change is said to be reversible if a change is brought out in such a way that the process could at any moment be reversed by the infinite simul change। अगर मान लो ये पूरा प्रोसेस है, इसको यहाँ से यहाँ हुआ है, तो इसको मैं फटाक से चेंज कर सकती हूँ, मतलब दिस इज व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ अ रिवर्सिबल प्रोसेस। यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक तो रिवर्स होगा ही, लेकिन अगर यहाँ से यहाँ भी रिवर्स करना हो, यहाँ से यहाँ रिवर्स करना हो, तब भी वो रिवर्स पॉसिबल हो, ठीक है। दैट इज व्हाट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। अ रिवर्सिबल प्रोसेस प्रोसीड्स इनफाइनाइटली स्लोली बाय अ सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। हर स्टेट पर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड होगा, ओके, विद ईच अदर। एवरी स्टेप विल बी इन इक्विलिब्रियम विद द अनदर, ओके, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर की बात हुई है, कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। वर्क डन रिवर्सिबल, दिस इज फॉर रिवर्सिबल, इज इक्वल टू, ये तो हमने देखा dv by v। nRt क्यों आया है मुझे बताओ, nRt क्यों आया है, एंड इसी को फर्दर इंटीग्रेट करके हम माइनस nRt log of vf अपॉन vi क्यों लिख रहे हैं, मुझे बताओ nRt क्यों आया। pv इज इक्वल टू nRt पढ़ा था ना, तो वर्क डन क्या था, वर्क डन इज इक्वल टू p del v था, तो p del v इज इक्वल टू nRt, इसीलिए p del v की जगह हमने क्या रख दिया, nRt। स्टूडेंट्स क्लियर, इतना क्लियर है सबको, ओके। चलो वर्क डन रिवर्सिबल की ये जो वैल्यू है ये आई कैसे, लेट अस चेक नाउ। देखो चलो चेक हियर, वर्क डन फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस, वर्क डन फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल, ये कंडीशंस है हमारी, आइसोथर्मल प्रोसेस, ओके। हमें पता है वर्क डन इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस ऑफ पी डेल वी, यही होता है, यस। नाउ पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, वी नो ऑलरेडी, सिंस पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, यहां से मैं प्रेशर की वैल्यू निकाल लूं, प्रेशर इज इक्वल टू एनआरटी बाय वी, यस। यहां पर पुट कर दूं, क्या हो जाएगा, माइनस एनआरटी बाय वी, एंड इसको क्या लिख दें, dv, ओके। सिर्फ इतना किया है मैंने, यस। डेल्टा वी इनफाइनाइट, क्यों डेल्टा वी, डी क्यों यूज करते हैं, फॉर इनफाइनाइटली स्मॉल स्टेप्स, ओके। हर स्टेप में कितना वॉल्यूम चेंज हो रहा है, थोड़ा थोड़ा dv वॉल्यूम चेंज हो रहा है, दैट इज व्हाई वी हैव रिटन dv हियर, ओके, क्लियर है। चलो अब v इनिशियल से v फाइनल हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ v, टेल मी क्या आएगा यहाँ पर, यस, v1 एंड v2, या आपको कह लो v इनिशियल एंड v फाइनल, नेगेटिव साइन बाहर, एंड p एक्सटर्नल कितना है, nRt बाय v, p एक्सटर्नल nRt बाय v डॉट dv, ठीक है, इतना हुआ, क्लियर है इतना। नाउ जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो व्हाट विल वी गेट, nRt बाय v एंड व्हाट स्टूडेंट्स, nRt बाय v, एंड आगे इंटीग्रेशन करना है, यस। v1 से v2, this can be written as minus nRt by log of v2 by v1 final upon initial, okay। चलो, so this will be the expression for work done for reversible isothermal process, okay। अच्छा, एक चीज और देख लेना, क्या आया है, work done is equal to minus nRt log of, this is what, this is natural log, okay, natural log
V2 by V1। ये हमारा वर्क डन आया है फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इट कैन बी रिटन एज -2.303 ओके nRT log ऑफ V2 by V1। मतलब नेचुरल लॉग को जब भी हम रिमूव करते हैं इन टर्म्स ऑफ दिस लॉग तो वी मल्टीप्लाई इट बाय 2.303 फैक्टर। यस, चलो इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं? इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को -nRT log ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ P1 by P2। क्यों? क्योंकि हमने बॉयल्स लॉ में पढ़ा था प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ओके, देयरफॉर ये अगर V2 by V1 है तो ये P1 by P2 हो जाएगा। सेकेंडली हम इसको कैसे लिख सकते हैं? सेम 2.303 nRT स्टूडेंट्स, nRT log ऑफ P1 by P2। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्म्स हैं फॉर द वर्क डन। ओके, मान लो अब एक और चीज समझ लो। ओके, मैं यही लिखती हूँ, ये जो नेगेटिव वाला इक्वेशन है ना, इसको अगर हमें पॉजिटिव में करना है तो क्या करेंगे? nRT log ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ P2 by P1 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, दिस इज सम बेसिक मैथ्स, आई गेस समझ लोगे। क्लियर है इतना? सो दिस इज द वर्क डन फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। V2 by V1 लिखा था ना, V2 by V1, तो इट इज नथिंग बट V फाइनल अपॉन V इनिशियल। ठीक है, चलो ओके स्टूडेंट्स, फ्री एक्सपेंशन ऑफ अ गैस। See, expansion of a gas in vacuum is, this is pressure external, मतलब external pressure 0 है, that is free expansion। गैस है, ठीक है, ये सिस्टम है, ये पूरे गैस के पार्टिकल्स हैं, ये पिस्टन है, दिस इज द पिस्टन। ओके, अब सिंस क्या हो रहा है, कोई P एक्सटर्नल नहीं है, P एक्सटर्नल जो है दैट इज इक्वल टू 0, तो ये खुद ही से एक्सपैंड करेगी। एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इन वैक्यूम इज कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन। नो वर्क इज डन ड्यूरिंग फ्री एक्सपेंशन, हम कोई एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहे हैं ताकि वर्क डन हो। एक्सपेंशन ड्यूरिंग फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है, वेदर द प्रोसेस इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। फॉर आइसोथर्मल क्या होता है? टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है स्टूडेंट्स। सो एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस इन वैक्यूम, सिंस P एक्सटर्नल 0 है तो वर्क डन कितना होता है? P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। ये 0 है स्टूडेंट्स, तो क्या ये पूरी क्वांटिटी 0 नहीं हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन में? तो वर्क डन कितना हो जाएगा? इक्वल टू 0। यस, होगा या नहीं होगा बताओ मुझे। एंड सिंस ये आइडियल गैस है, ओके, तो Q will also be equal to 0 and delta U will also be equal to 0 for the free expansion of an ideal gas. Clear? Now, delta U is equal to Q plus W can be expressed for isothermal irreversible and reversible changes as follows. देखो work done तो हमने calculate किया था किसके लिए? reversible process के लिए। yes, यही calculate किया था ना for a reversible change। irreversible के लिए क्या होता है? like this, okay? irreversible के लिए work done, what will the work done be? it will be equal to P external V final minus V initial। ठीक है, एंड इसके लिए क्या था? माइनस ऑफ P एक्सटर्नल V फाइनल माइनस V इनिशियल। ठीक है, दिस इज द मेजर डिफरेंस। चलो, एडियाबैटिक चेंज के लिए हमें पता है सिंस डेल्टा U और यू कैन से Q इज इक्वल टू 0, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W होता है, ये 0 है तो U विल बी इक्वल टू W। So work done in an adiabatic process will be how much? Equal to the internal energy of the system. Clear इतना? Yes, tell me. Okay, चलो, coming to enthalpy। अब ये हम next lecture में देखेंगे, lecture number 2 में। यहाँ तक आप अच्छे से revise करना, understand it properly। कोई doubt हो तो let me know। Okay students, चलो, we will continue from here in the next lecture। That's all. Thank you. Have a great day.